Assalamu alaikum students, welcome to all of you in macroeconomic class. Today our lecture number third, and in this particular lecture we will continue the previous discussion that we started in second lecture regarding the different economic system, and we were discussing command economy, market economy, and mixed economy, and we were discussing about the economic system, like economic system, in comparison with other economic system. So far we have only completed the command system, or you can say uh, command system, or socialism, or communism. So we talked about the different concept regarding the command system, and what are the major things regarding the command system. So now we will move toward the market system, and after explaining the market system we will discuss few of the characteristics of market system, and we will compare it with the command system as well, and then in the later part we will move toward the mixed economy or mixed economic system, and we will also look at how different countries follow the different kind of systems. अ, जहाँ तक हमारे लास्ट लेक्चर की बात थी तो हमने कमांड सिस्टम को डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस द मार्केट सिस्टम. Market system, the other part that we can say is totally opposite to the command system. In a market system, we can say capitalism. The system is characterized by the private ownership of the resources and use of market prices to coordinate and direct economic activity. तो जब हम मार्केट सिस्टम की बात करते हैं तो मार्केट सिस्टम जो है प्योरली जो है प्राइवेट ओनरशिप पे डिपेंड कर रहा होता है. और यहाँ पे प्राइसेस जो है अदर देन गवर्नमेंट जो है प्राइसेस सेट करे, गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ों को सप्लाई और डिमांड के इंडिकेटर्स को मूव करे. यहाँ पे मार्केट जो है वो इटसेल्फ मूव हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस सेट हो रही होती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, और वहाँ पे मार्केट की प्राइसेस सेट हो रही होती हैं. और मार्केट सिस्टम या कैपिटलिज्म में जब वन ऑफ द मेजर फीचर है कि प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है. जितनी भी ओनरशिप है वो प्राइवेट जो है वो लोग ओन करते हैं, rather than we compare it with the command system, तो वहाँ पे वो ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर आती थी. So participant act in their own self interest. जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस मार्केट सिस्टम के वो तमाम जो है अपने बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं. Individual and businesses seek to achieve the economic goal through their own decision regarding work, consumption or production. जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो हैं, वो अपने इकोनॉमिक गोल जो है वो अचीव कर रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर वर्क, कंजम्पशन, प्रोडक्शन. जितने भी उनके रिगार्डिंग डिसीजंस हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस कर रहे होते हैं. इन शॉर्ट के वी कैन से एवरीबॉडी ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और वहाँ पे जो है वो अपने टारगेट जो है, अपने गोल जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं. दिस सिस्टम अलाउ फॉर द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, कम्युनिकेट through prices, and coordinate economic activity through markets, place where buyer and seller come together to buy and sell goods, services and resources. ठीक है, तो मार्केट की जब हम बात करते हैं, मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर to buy and sell the resources.
Goods and services are produced and resources are supplied by the whoever is willing and able to do so. अ, इसमें जो है हमें हाईएस्ट कंपटीशन मिलता है मार्केट सिस्टम में, और जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो गेन कर सकता है. जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इज वाइडली dispersed and also the high potential monetary reward create powerful incentive for existing firms to innovate and entrepreneurs to pioneer new products and process. Because यहाँ पे इस मार्केट सिस्टम में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है कि इफ़ यू हैव एनी ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट, एनी ऑफ द न्यू आइडिया, न्यू बिजनेस, ये सिस्टम जो है उसको इनकरेज करता है. आप अपनी इन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा यहाँ पे बनाना चाहें जो है इस सिस्टम में अलाउ किया जाता है. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें लेके आते हैं. तो इस काइंड ऑफ सिस्टम इन विच द इकोनॉमी ग्रो ऑल टुगेदर, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट चीज़ें लेके आ रहे हैं, इनोवेशन लेके आ रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस लेके आते हैं. तो उस वजह से जो है वो ग्रोथ जो है इस सिस्टम में नोट की जाती है. अगर हम प्योर कैपिटलिज्म की बात करें, laissez-faire capitalism, government would be limited to protecting private property and establishing the environment appropriate to operation of the market system. The term laissez-faire means let it be, that is, keep government from interfering with the economy. The idea is that such interference will disturb the efficient working of the market system. अगर हम प्योर कैपिटलिज्म की बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं भी गवर्नमेंट की इंटरवीन नज़र नहीं आती. गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन नहीं कर रही होती. जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो डायरेक्टली जो है मार्केट की फोर्सेस खुद से डिटरमिन कर रही होती हैं. But in the capitalism practice in United States and most other countries, government play a substantial role in the economy. लेकिन कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो प्योर इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पे हमें देखने को नहीं मिलता. इवन इन यूनाइटेड स्टेट अगर हम कहें कि प्योर कैपिटल सिस्टम है तो ऐसा नहीं है. वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, सब्सटेंशियल रोल जो है हमें नज़र आता है. It not only the provider the rules for the economic activity, but also promote the economic stability and growth, provide certain goods and services that would otherwise be underproduced or not produced at all, and modify the distribution of income. तो वहाँ ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द मार्केट सिस्टम, बट वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रही होती है. गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बना रही होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जा सकता है. uh, उसके साथ साथ अगर किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट वहाँ पे अगेन इंटरवीन कर रही होती है. कैसे जो है वो ग्रोथ अचीव की जा सकती है इकोनॉमिक सिस्टम में, कैसे स्टेबिलिटी लेके आई जा सकती है. ठीक है, वो इन तमाम चीज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही होती है. फिर गवर्नमेंट डिफरेंट अपनी इनकम के सोर्सेज जो है और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक के थ्रू जो है लोगों की सेविंग, इनकम, इन तमाम चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है. तो जितने भी हम इकोनॉमिक सिस्टम अगर डिफरेंट कंट्रीज़ को हम कंपेयर करें, बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हमें मिलते हैं जहाँ पे प्योर जो है कैपिटलिज्म फॉलो किया जा रहा हो या प्योर कमांड सिस्टम फॉलो किया जा रहा हो. Most of the country are following the mixed economy system or
मोर लेस जो है वो किसी एक साइड पे ज़्यादा उसकी जो है वो रेशो नज़र आती है। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हियर इट इज़ इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम सिलेक्टेड इकोनॉमी। अगर हम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें कि किन कंट्रीज़ में जो है इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा है, बिजनेसेस जो है फ्रीली वर्क कर सकते हैं, इन शॉर्ट के मार्केट सिस्टम या फ्री इकोनॉमी की तरफ सिस्टम ज़्यादा मूव करते हैं, तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम measure the economic freedom using 10 broad categories such as trade policy। तो उनमें वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इस इंडेक्स को डेवलप किया जब उन्होंने, तो उनमें इन इंडेक्स के थ्रू वो तमाम चीज़ें देखेंगे कि उस कंट्री की ट्रेड पॉलिसी क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड पॉलिसी मीन्स कि वहाँ पे जो है फ्रीली जो है वो ट्रेड पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ट्रेड से रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज उस कंट्री में कौन सी फॉलो की जा रही हैं। प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं या प्राइवेट ओनरशिप है। एंड गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की इंटेंसिटी और डिग्री कहाँ तक है। विद ईच कैटेगरी containing more than 50 specific criteria, the index then rank 179 economy according to their degree of economic freedom। तो जिन कंट्रीज में यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड बेहतर अंदाज में ट्रेड पॉलिसीज फॉलो की जा रही हों, प्रॉपर्टी राइट जो है वो लोगों को मिल रहे हों, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो कम हो, तो दीज आर काइंड ऑफ इकोनॉमीज which consider as economic freedom in these particular countries। So on the basis of these criteria if economic freedom index is developed, and on the basis of economic freedom index जो है 179 इकोनॉमीज को पे वो इम्प्लीमेंट किया गया। According to their degree of economic freedom, a few selected ranking for 2010 are listed below। although ये काफ़ी पुराना नंबर है 2010 में, जो अगर हम देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स जो है हमें एक एक फ्रेम जो है वो नज़र आता है। these are the country which are following the free economic system: हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। ये वो तमाम इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे मार्केट सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा प्रमोट होते नज़र आते हैं हमें। वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम नज़र आती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है वहाँ पे। मार्केट सिस्टम जो है, मार्केट की फोर्सेस खुद से प्राइसेस, खुद से चीज़ों की जो है मूवमेंट जो है वो डिसाइड करती है। और उसके बाद हमें कुछ मोस्टली फ्री सिस्टम मिलेंगे। इट मीन्स कि ये वो तमाम कंट्रीज हैं जो फ्री इकोनॉमीज तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें नज़र आती है, और तो वो उतनी इंटरवेंशन नहीं है जो डिफरेंट अदर कंट्रीज में हमें नज़र आती है। तो लेवल ऑफ जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है, वो बहुत कम है कंपैरेटिवली डिफरेंट अदर कंट्रीज। तो इनमें मोस्टली फ्री इकोनॉमी वो होंगी जहाँ पे मार्केट सिस्टम ज़्यादातर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ों को कंट्रोल करती है, वहाँ पे स्टेबिलिटी शो करती है, पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। कुछ चीज़ें अगर जो है वो शॉर्टेज हो जाती है या कुछ चीज़ें, तो कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूर वहाँ पे है। तो ऐसे कंट्रीज़ जो हैं, ऐसी इकोनॉमीज़ जो हैं, वो मोस्टली फ्री इकोनॉमी कहलाती हैं। और जो कंपेरेटिवली अगर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा थे, वो इन कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है। और ऐसे कंट्रीज जो उसके बाद जो है उसमें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमें नज़र आती है, कंपैरेटिव नंबर कम है, तो वो हमें मोस्टली फ्री कंट्रीज की लिस्ट में नज़र आते हैं। कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड बोट्सवाना। तो दीज आर कंट्रीज विच आर
mostly free economy. Another category we have मोस्टली अनफ्री इकोनॉमी। अब जो है रिप्रेस्ड इकोनॉमी और मोस्टली अनफ्री इकोनॉमी। रिप्रेस्ड इकोनॉमी वो है जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम का जो नंबर है वो बहुत कम होगा, या वहाँ पे कमांड सिस्टम जो है वो फॉलो, ये वो तमाम कंट्री जहाँ पे कमांड सिस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा होता है। और ये वो तमाम कंट्रीज है जहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली कमांड सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो रिलैक्सेशन होती है। ऐसे कुछ जो है इंस्टीट्यूट जो हैं वो पब्लिकली ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ओन करती है, और कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनको ऑन कर रही होती है, प्राइवेटली जो है ऑन कर रही होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। So, when we compare these different countries, तो अगर हम इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, अगर इनकी हम जीडीपी और डिफरेंट अदर इंडिकेटर देखें, तो उसकी बेस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेहतर है। अगर इन्हीं कंट्रीज़ की हम जीडीपी और डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो चेक करें, तो उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। और दो अगर आप यहाँ पे देखें, ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी ओवर द पीरियड टाइम। तो ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे कमांड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। इवन ये वो कंट्रीज हैं जो डेवलप इकोनॉमीज में आती हैं, और इमर्जिंग इनकी स्टेबिलिटी नज़र आती है हमें, और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है हमें बेहतर नज़र आते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम तो इन कंपैरिजन दो सिस्टम विच वर फॉलोइंग द कैपिटलिज्म और मार्केट सिस्टम, वहाँ पे कंपैरेटिवली हमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो इम्प्रूव नज़र आते हैं। हर दो के इसकी कंट्री टू कंट्री पे हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसमें एग्जैक्टली जो है हम ताकि डिटरमिन कर सकें। ओके, okay, before going into the detail, हम इन डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लेते हैं, इसके डिफरेंट फीचर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी देखें, तो मार्केट सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हमें नज़र आती है। प्राइवेटली लोग जो है वो ऑन कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड साइड अगर हम कमांड सिस्टम में देखें, तो वहाँ पे जो है प्राइवेट ओनरशिप नज़र नहीं आती, गवर्नमेंट जो है वो ऑन कर रही होती है इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। The most important consequence of the property right is that they encourage people to cooperate by helping to ensure that the only mutually agreeable economic transaction take place. तो अगर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी, दोनों पार्टीज आपस में एग्री हैं, तो वो इजीली जो है एक दूसरे को जो है वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकती हैं मार्केट सिस्टम में। To consider why this is true, imagine a world without a legal enforceable property right. In such a world, the strong could simply take whatever they wanted from the weak without giving them any compensation. बट इन द वर्ड ऑफ largely enforceable property right, तो इसमें क्या है, वो प्रॉपर्टी राइट को इन्फोर्स किया जाता है कि पब्लिक जो है प्राइवेट ओनरशिप जो है वो अलाउ है इसमें, और इसको जो है लीगली इन्फोर्स भी किया जा सकता है। अगर कोई क्लेम करता है आपकी प्रॉपर्टी पे, तो आप उसको, अगर आप उसके ट्रू ऑनर हैं, तो आप इस सिस्टम में उसको क्लेम भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट आल्सो इनकरेज इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी राइट होने की वजह से ज़्यादा लोगों को पता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मेरी ऑनरशिप में आएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है। ये
इनोवेशन, एक्सचेंज, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने में मिलती है। So nobody would stock a store, build a factory, or land for farming if someone else, a government itself, could take that property. तो वो सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे जो है प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है या उसको जो है क्लेम कर सकती है, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और या ऑनरशिप इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट की इंटेंसिटी है या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। Property right also extend the intellectual property through a patent, copyright and trademark। अब प्रॉपर्टी राइट की अगर बात करें तो न सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास कोई जैसे बुक्स है या कोई लिटरेचर है, मूवीज हैं, इसी तरह, ठीक है, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ प्रॉपर्टी राइट आल्सो एक्सटेंड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। Such a long-term protection encourage people to write books, music, and computer programs, to invent new products, production process without fear that others will steal them and the reward may be bring। Uh, तो बिकॉज प्रॉपर्टी राइट जो है उसको श्योर किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जो है वो हमें जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। सच लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, इस तरह की लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रमोट करने में भी सपोर्ट कर रही होती है। ओके, moreover, property right facilitate exchange the title to an automobile or deed to cattle ranch, assure the buyer that the seller is legitimate owner. Also, property right encourage owner to maintain or improve their property so as preserve or increase its value. Finally, property right enable people to use their time and resources to produce more goods and services rather than using them to protect and retain the property they have already produced or acquired। तो ये in short we can say property right का होना उसकी वजह से जो है वो इस सिस्टम में लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है टुवर्ड द इन्वेस्टमेंट। लोगों को पता है कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ जो है वो ओन कर सकते हैं और हमारी ओनरशिप जो है वो लीगली इन्फोर्स की जा सकती है, कोई और उस पर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही होती हैं। तो वन ऑफ द रीज़न कि ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसीलिए है कि इसमें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट ओनरशिप जो है हमें देखने को मिलती है। ओके, the other point is freedom of enterprise and choice. Closely related to the private ownership of the property is freedom of the enterprise and choice। तो हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, न्यू इंटर्न्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो देखने को मिलता है। The market system requires the various economic units make certain choices which are expressed and implemented in the economy's market। Freedom of enterprise ensures that entrepreneurs and private business are free to obtain and use economic resources to produce their choice of goods and services and sell them in their chosen market। अब उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं रादर देन कमांड सिस्टम में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप रिसोर्सेज को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मार्केट सिस्टम की तो आप यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है।
Freedom of choice enable owner to employ or dispose of their property and money as they see fit. तो इस सिस्टम में वो जहाँ चाहें अपनी प्रॉपर्टी या मनी को जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं, वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको. इट आल्सो अलाउ वर्कर टू ट्राई टू इंटर एनी लाइन ऑफ वर्क फॉर विच दे आर क्वालिफाइड. इसी तरह इवन वर्कर्स हैव द चॉइसेस. They whatever you want to do, they can do according to their qualification. Finally, it ensures that consumers are free to buy goods and services that best satisfy their want and that their budget allow. तो इस सिस्टम में हमें जो है वो एक तरफ तो इन्वेस्टर बिजनेसमैन उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो जितने चाहे सोर्सेज यूज़ करें, जितनी चाहे प्रोडक्शन कर रहे हों. फिर एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेबर को लेके, जो लेबर या एम्प्लॉयमेंट उसको जो उसकी क्वालिफिकेशन, जो एक्सपर्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको जॉब सूट करती है, वो उस तरह की जॉब जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं. और इसी तरह कंज्यूमर को लेके और कस्टमर को लेके, कस्टमर whatever he want to buy, whatever they want to buy, choices such as selling human organs or buying illicit drugs are punished through fines and punishment. इम्प्रिजनमेंट में आ जाती हैं, पनिश हो सकते हैं आप अगर कुछ इलीगल चीज़ें या जो थिंग्स लाइक इलीगल ड्रग्स और इलीगल सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. अगर इसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ऐसी चीज़ें जो पर्टिकुलर इकोनॉमीज़ में बैन हो आप उनको भी सेल आउट कर सकते हैं, उनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो कंट्री टू कंट्री जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग होते हैं. इन जर्नल अगर हम बात करें तो जनरली जो चीज़ें हैं उनमें जो है वो ये अप्लाई होता है. अदरवाइज वो चीज़ें जो लीगली बैन हैं, जो उन पर्टिकुलर कंट्री के अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें देखी जा रही होती हैं. So far we have discussed 2 points. One is the private property, another is freedom of enterprise and choice. Freedom of enterprise and choice के बाद नेक्स्ट वी हैव सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो मार्केट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है. इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एंड इफ द इंडिविजुअल और कंपनी, they know whatever they will invest they will directly get the return, and it doesn't mean like the command system or other system in which there are certain restrictions. इफ़ यू गेन अगर आपने कोई भी रिटर्न लिया है उसकी ख़ास परसेंटेज जो है वो आपको पे करना होती है, या उसमें से जो है आपको कुछ परसेंटेज इनकम आप जो है वो ले सकते हैं, या आपको गवर्नमेंट के एंड पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में देखने को मिल सकती हैं कि वट एवर द अमाउंट विल यू गेन फ्रॉम द बिजनेस, so that amount should be reinvest in that particular business or in the in a particular percentage. uh, तो यहाँ पे मार्केट सिस्टम में आपको देखने को जो चीज़ मिलती है वो सेल्फ इंटरेस्ट मिलता है. सेल्फ इंटरेस्ट is the motivating force of the various economic unit as they express their free choices. Self-interest simply means that each economic unit try to achieve its own particular goal, which usually require delivering something of the value to others. Uh, Entrepreneurs try to maximize profit or minimize losses. एंटरप्रेन्योर है जो वो मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है और मिनिमाइज करना चाह रहा है अपने लॉसेस को.
Property owner try to get the highest price for their sale or rent of their resources. Worker try to maximize their utility satisfaction by finding job that offer the best combination of the wages और तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो भी अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए जा रहा है, कस्टमर भी जो है कंज्यूमर जो है अपने मैक्सिमम बेनिफिट सेटिस्फेक्शन के लिए जाना चाह रहा है। इसी तरह इवन एम्प्लॉयज जो हैं वो भी अपने इंटरेस्ट अपने बेनिफिट के लिए जाने जा रहे होते हैं मार्केट सिस्टम में। Again, next point we have competition. The market system depend on competition among economic unit. The basis of this competition is freedom of choice, exercise, and pursuit of an monetary return. Very broadly defined, competition require अगर हम कंपटीशन की बात करें तो मार्केट सिस्टम में हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो देखने को मिल रहा होता है। Two or more buyer and two or more seller acting independently in a particular product or resource market. Usually there are many more than two buyer or sellers. Uh, कंपटीशन जो है बिकॉज टू और मोर बायर एंड टू और मोर सेलर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। अगर दो या दो से ज़्यादा बायर और दो या दो से ज़्यादा सेलर इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सोर्स मार्केट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में और रिसोर्स मार्केट में। अगर प्रोडक्ट मार्केट की बात करें तो जहाँ पे कमोडिटीज और डिफरेंट प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रही होती हैं, बिजनेसेस ऑफर करते हैं, कंज्यूमर बाय करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है रिसोर्स मार्केट जहाँ पे जो है वो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है बिजनेसेस जो है सर्विसेज को बाय कर रहे होते हैं। यूजुअली देयर आर मैनी मोर देन टू बायर और सेलर। तो दो या दो से ज़्यादा बायर या सेलर भी हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सेलर एंड बायर इंटर or leave market enter or leave market on the basis of their economic self-interest। तो इसमें क्योंकि कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, देयर आर मोर देन टू बायर, तो एवरीवन वांट टू गेट द मैक्सिमम शेयर ऑफ मार्केट, मैक्सिमम कस्टमर। इसी तरह अगर सेलर की बात करें तो अगर जो है सेलर डिफरेंट है तो वो हर सेलर जो है वो पर्टिकुलर गुड अगर मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट है तो वो अचीव करना चाहेगा। तो इन मार्केट सिस्टम द ह्यूज कंपटीशन इज नोटिस, कंपटीशन अमंग बायर्स, बिटवीन बायर कंपटीशन नज़र आता है, एंड सेलर डिफ्यूज इकोनॉमिक पावर विद इन द बिजनेस एंड household that make up the economy. When there are many buyers and sellers acting independently in the market, no single buyer or seller can dictate the price of the product or services because other can undercut their price। जब तमाम बायर तमाम सेलर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हों तो वो कोई भी एक सिंगल बायर या सेलर मार्केट की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। इफ वन बायर इज चार्जिंग द हाई प्राइस and other rest of the buyers are charging the lowest price, तो अल्टीमेटली कस्टमर जो है हाई प्राइस वाले से बाय नहीं कर रहा होगा। तो इन दिस वे वी कैन से एक बायर जो है वो प्राइस को जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो उसमें तमाम जितने भी बायर्स हैं वो मार्केट के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जैसे ही डिमांड और सप्लाई चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस में चेंज आ रहा होगा। Competition also implies that producer can enter or leave an industry. No instrumental barrier prevent an industry expanding or contracting। तो यहाँ पे हमें कोई किसी किस्म का बैरियर नज़र नहीं आता कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। कंपटीशन always encourage the expansion. This freedom of industry to expand or contract provide the economy with the flexibility needed or to remain efficient over the time. Freedom of entry or exit
किसी भी स्पैम ऑफ टाइम पे न्यू बिजनेस इंटर हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है एग्जिट कर सकते हैं। दैट enable the economy to adjust the change in the consumer taste। तो जैसे जैसे कंज्यूमर के टेस्ट, टेक्नोलॉजी और सोर्सेज अवेलेबिलिटी में चेंज आता है, उसी तरह से जो है ये कंपटीशन का लेवल जो है वो चेंज हो रहा होता है, और यू कैन नोटिस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द मार्केट। The diffusion of economic power inherent in the competition limit to the potential abuse of the power. A producer that charge more than the competitive market price will lose sale to other producer। अगर competitive मार्केट में कोई भी बायर, जैसे मैंने पहले कहा, ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो वो अल्टीमेटली अपने कस्टमर जो है वो लूज कर सकता है, और कस्टमर जो है अदर प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एन एम्प्लॉयर हु पे लेस देन द competitive मार्केट वेज रेट। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो कम रेट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को मार्केट में, मार्केट के वेज रेट से कम रेट दे रहा है, तो विल लूज वर्कर टू दी। तो वहाँ उस कंपनी या उस एम्प्लॉयर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ से मूव करके किसी और कंपनी या किसी और एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर रहे होंगे। A firm that fail to exploit new technology will lose profit to the firm that do so, that do। तो अगर कोई फर्म जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, अगर बाकी तमाम फर्म टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, तो उनकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर ज़्यादा है as compared to those organization or those companies which are working on the basis of लेस टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जो है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो है कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन जो हमें मार्केट सिस्टम में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ए फर्म दैट प्रोड्यूस shoddy products will be punished as customers switch to the high quality item made by the rival firm। Competition is the basic regulatory force in the market system। तो competition जो है वो बेसिक रेगुलेटरी फोर्स है इन द मार्केट सिस्टम, जिसकी बेस पे डिफरेंट इंडिकेटर चेंज हो रहे होते हैं। कंपटीशन की वजह से प्राइसेस जो है वो मार्केट में कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कस्टमर से आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, कस्टमर को जो है आप उस केस में पर्टिकुलर मार्केट में जो है वो डाउट नहीं कर सकते। कस्टमर जो है बिकॉज कस्टमर हैव अदर सोर्सेज, अदर एफिशिएंट मार्केट सोर्सेज हैं उसके पास। अगर कोई एक बायर जो है वो ज़्यादा चार्ज करेगा या प्रोडक्ट की क्वालिटी कम दे रहा होगा, तो कस्टमर विल मूव टू अदर। दैट्स व्हाई द कंपटीशन encourage the market competition, encourage the whole economic system। when we talk about the competition की वजह से जो है वो कस्टमर अपने एंड पे बेनिफिट गेन कर रहा होता है, और जब डिफरेंट कंज्यूमर्स के बीच कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फिर बायर्स को भी हो जाता है। तो in short we can say the competition is widely followed in market system। और जबकि कमांड इकोनॉमी में वहाँ पे हमें इतना कंपटीशन नज़र नहीं आता, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक वे में जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट जहाँ पे चाहती है प्राइसेस सेट कर रही होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रही होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो डिफरेंट कोटाज जो है वो इम्पोज कर देती है। तो मार्केट सिस्टम में कंपटीशन जो है वो फॉलो हो रहा होता है, इनकरेज किया जा रहा होता है उसको, जबकि कमांड सिस्टम में जो है वो इसको इनकरेज नहीं किया जा रहा होता। Then we have market and prices। We may wonder why an economy based on self-interest does not collapse in chaos। if अगर हम
वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन दैट राइज के अगर तमाम इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस कर रही है तो वो मार्केट जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती। हर बंदा अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो मार्केट को तो एक आम सा क्वेश्चन माइंड में आता है कि मार्केट को कोलैप्स कर जाना चाहिए। इफ कंज्यूमर वांट ब्रेकफास्ट बट लेट्स से कि अगर कंज्यूमर को जो है वो ब्रेकफास्ट चाहिए बट बिजनेस चूज प्रोड्यूस रनिंग शूज, और बिजनेसेस अगर जो है डिमांड जो है वो ब्रेकफास्ट की है, बिजनेसेस अगर चूज करें कि वो शूज बनाएंगे एंड रिसोर्सेज सप्लायर डिसाइड टू मेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और रिसोर्सेज जो हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन वुड सीम टू बी deadlocked by the apparent inconsistency of the free choices। अब जो है इनकॉन्सिस्टेंसी होने की वजह से वो सिस्टम वर्क नहीं कर सकेगा कि डिमांड किसी और चीज़ की है, सप्लाई कुछ और प्रोड्यूस करना चाह रहा है, रिसोर्सेज कुछ और चीज़ के अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ द फ्री चॉइसेस की वजह से वो सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर सकेगा। In reality, the million of decisions made by the household and businesses are highly coordinated with one and other by markets, and the prices, which are key component of the market system, the अब मार्केट सिस्टम में जो है वो प्राइसेस जो है वन ऑफ द की एलिमेंट के प्राइसेस जो है वो कैसे सेट होते हैं। अगर हम कमांड सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो प्राइसेस डिटरमिन कर रही होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड साइड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट सिस्टम में on the basis of supply and demand जो है wherever the demand and supply interact, तो उसकी बेस पे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस सेट हो रही होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है कांस्टेंट है या सप्लाई कम है तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही होंगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कांस्टेंट या डिमांड कम है तो वहाँ पे प्राइसेस कम हो रही होंगी। that we will discuss later in aggregate demand और aggregate supply chapter। और तो आप पहले यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया होगा अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि कैसे प्राइसेस जो हैं वो सप्लाई और डिमांड की बेस पे डिसाइड हो रही होती हैं, डिटरमिन हो रही होती हैं। तो मार्केट सिस्टम में टोटली प्राइसेस जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे जो है वो डिटरमिन हो रही होती है। मार्केट इज द इंस्टीट्यूशन अ मैकेनिज्म दैट ब्रिंग बायर डिमांड करते हैं एंड सेलर्स सप्लायर्स into contact। A market system conveys the decision made by buyer and seller of the product and resources। The decision made on each side of the market determine a set of products and sources prices that guide resource owner, entrepreneur, and consumer as they make revise their choices and pursue their self-interest। Just as competition is a regulatory mechanism of the market system, the market system itself organizing and coordinating mechanism. It is an elaborate communication network through which अगर हम बात करें मार्केट सिस्टम की, तो मार्केट सिस्टम में जो है प्राइसेस मार्केट के इंडिकेटर जो हैं वो खुद से डिटरमिन करते हैं। कोई सिंगल बॉडी या गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इंटरवीन नहीं कर रही। तो जस्ट शॉर्ट आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। those who respond to market signal and eat market dictate are rewarded with a greater profit and income। Those who do not respond to the signal and choose to ignore market dictate the penalized। Through this mechanism, society decide what the economy should produce, how production। अब बिकॉज जितनी भी मार्केट सिस्टम में प्राइसेस जो हैं
इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू होती है। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इफ़ यू आर द बिजनेसमैन, इफ़ यू आर द प्रोड्यूसर, यू कैन incur the loss। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने पहले डिस्कस करा, जिस चीज़ की डिमांड है आप वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो और यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग अदर, तो इट माइट बी नॉट demanded by the customer and you get जो है आप उस केस में लॉस जो है वो इंकर कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली whatever the economic signals, whatever the market signals, you are behaving according to the market signal or market indicator, so you can get the maximum benefit of it। So मार्केट सिस्टम में जो है वो प्राइसेस हमने यहाँ पे देखा कैसे सेट हो रही होती हैं। मार्केट सिस्टम में प्राइसेस जो है वो हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, सप्लाई डिमांड जो है उनमें चेंज आने की वजह से सेट हो रही होती है। और उन इंडिकेटर को अंडरस्टैंड करते हुए आप क्या बेनिफिट गेन कर सकते हैं मार्केट सिस्टम में, वो हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। अगेन टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा होता है मार्केट सिस्टम में। इन द मार्केट सिस्टम, competition, freedom of choice, self-interest, and personal reward provide the opportunity and motivation for the technological advance. The monetary reward for new products or production technique acquire the production technique, the monetary reward for new products or production technique जो है वो इनोवेटर को डायरेक्टली जो है रिवॉर्ड दे रही होती है। द मार्केट सिस्टम देयरफॉर इनकरेज एक्सटेंसिव यूज एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो फर्दर किसी चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हों। One is consumer good, other is capital good। If we talk about the consumer goods, जो अल्टीमेटली कंज्यूम होने के बाद खत्म हो, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फूड आइटम जितने भी हैं। और कैपिटल गुड ऐसे गुड्स हैं जिनके थ्रू जो है जैसे प्लांट है, मशीनरी है, आप उनके थ्रू जो है फर्दर जो है उसको यूटिलाइज करते हो, उसको प्रोड्यूस डिफरेंट अदर चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए। The market system therefore encourages extensive use and rapid development of complex capital goods, tools, machinery, large-scale factories, and facilities storage, communication, transportation, and marketing. Advanced technology and capital goods are important because the most direct method of production are often the least efficient. The only way to avoid the inefficiency is to rely on capital goods. It would be ridiculous for a farmer to get production with the bare hand. There are huge benefits to be derived from the creating using such capital equipment as plows, tractors, storage bins. The more efficient production means such more abundant output. तो अगर हम टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स की यूटिलाइजेशन की बात करें तो मार्केट सिस्टम में इसको इनकरेज किया जा रहा होता है। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, स्पेशलाइजेशन मीन द एक्सटेंट विद द मार्केट इकोनॉमी रिलाई ऑन स्पेशलाइजेशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मार्केट सिस्टम जो है वो स्पेशलाइजेशन पे जो है वो बेस कर रही होती है। स्पेशलाइजेशन मीन यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म, रीजन और नेशन टू प्रोड्यूस वन और फ्यू गुड्स और सर्विसेज रादर देन एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर गुड्स जो है प्रोड्यूस करना, ठीक है, पर्टिकुलर स्किल्स को यूटिलाइज करना। स्पेशलाइजेशन मीन्स if you are talking about the business, a specialization means using the resources of an individual firm
region or nation to produce one or few goods, or services rather than entire range of। इसके बजाय बजाय इसके कि आप एक ही सोर्स से या एक ही इंडिविजुअल फर्म या रीजन जो है वो तमाम तर गुड्स एंड सर्विसेज की रेंज प्रोड्यूस कर रही हो, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब होगा वो किसी एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस कर रही हो या बहुत कम जो है फ्यू गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हो। Uh, those goods and services are then exchanged for a full range of desired product। तो then जो है वो ये तमाम चीज़ें फिर desired goods के साथ exchange की जा रही होती हैं। The majority of consumers produce virtually none of the goods and services they consume, and they consume little or nothing of the items they produce। Uh, अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम वट एवर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस हार्डली वो खुद उसको यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रोडक्शन अगर हम करते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें अगर आपने खुद ही प्रोड्यूस करनी है तो यू मस्ट नो एवरी ईच एंड एवरी थिंग कि आपने वो कैसे प्रोड्यूस करनी है। जस्ट लाइक पास सिस्टम में जैसे होता था बार्टर सिस्टम में, या उसके बाद कि आपको जितने भी प्रोडक्शन चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपके नीड एंड वांट हैं, तो वो आप खुद प्रोड्यूस करते थे मैक्सिमम, या फिर आप जो है वो एक्सचेंज पे जाते थे। तो मार्केट सिस्टम में क्या है, इफ़ यू हैव स्किल you can produce one thing or few things, you can generate the revenue, generate the money, and you can buy anything from the market। So specialization, people rather than having the ability of all of the expertise of all the things, they just focus on a particular thing or particular expertise and earn the money, and then with that particular amount of a particular money they can buy or they can get any kind of services। तो स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केट सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। डिवीजन ऑफ लेबर मींस ह्यूमन स्पेशलाइजेशन का द डिवीजन ऑफ लेबर contribute to society output in services in several ways। Specialization make use of difference in ability। अब स्पेशलाइजेशन की वजह से ही हमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलती है कि हर इंडिविजुअल जो है अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है, जैसे हम अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट लोग जो है सर्व कर रहे होते हैं। तो specialization make use of differences in ability। Specialization enable individual to take advantage of existing differences in their abilities and skill। फिर अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन फैक्टर फोस्टर लर्निंग बाय डूइंग एंड स्पेशलाइजेशन सेव टाइम। अगर हम स्पेशलाइजेशन के डिफरेंट जो है वो बेनिफिट देख लें, तो स्पेशलाइजेशन मेक यूज ऑफ डिफरेंस इन एबिलिटी to take advantage of existing difference in their ability and skill। If pattern is strong, athletic and good for throwing a football and तो स्पेशलाइजेशन का वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ये है कि एक्सपर्ट सामने आते हैं। एक्सपर्ट जो है, अगर एक पर्सन अपनी चीज़ फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा जो है एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर सकता है, रादर देन एक ही पर्सन डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो वहाँ पे वो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन जो है वो इतने अच्छे अंदाज से नहीं कर सकता। तो वन ऑफ द रीज़न, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अदर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन के स्पेशलाइजेशन foster learning by doing। If even if the ability of two people are identical, specialization may still be disadvantages। By devoting time to a single task, a person is more likely to develop the skill required and improve the technique than by working at the number of different।
अगर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, अगर एक पर्सन एक ही काम बार बार करेगा तो दे कैन गेट ही और शी कैन गेट एक्सपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क। अगर वो डिफरेंट टास्क कर रहा होगा तो उसमें उसको उस तरह से एक्सपर्टीज नहीं अचीव हो रही होगी। अगर वो एक ही टास्क जो है वो बार बार करेगा तो ही वुड considered as expert in that particular work and in that particular field. Specialization obviously save time by devoting time to a single task. Person avoid to loss of the time incurred in shifting from one job to another. तो एक पर्सन एक जॉब के लिए मुख्तस है तो वो शिफ्टिंग का जो एक पहले एक जगह काम कर रहा है फिर दूसरी जगह तीसरी जगह, तो वो जो शिफ्टिंग का टाइम है वो जो है सेव किया जा सकता है। आल्सो टाइम इज सेव्ड बाय नॉट फम्बलिंग अराउंड विद टास्क दैट वन इज नॉट ट्रेन टू डू। और एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम एक दो तीन कामों में एक्सपर्टीज अगर रख सकता है तो इससे ज़्यादा काम में एक्सपर्टीज नहीं होता रख सकेगा। तो वो अगर कहीं पे फंबल करता है, कहीं पे जो है वर्किंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ को भी उस टाइम को भी सेव किया जा सकता है। इसी तरह हमें जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन भी मिलती है देखने को। जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन मीन के कुछ रीजनल जैसे रीजनल वर्क हैं वो कुछ या रीजनल हमें specialization also work on a regional and international basis. It is conceivable that oranges could be grown in Nebraska. अब डिफरेंट कंट्रीज की अपनी प्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अपने जो है वेदर टेम्परेचर्स, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्शन जो है अगर फार्मिंग की बात करें या डिफरेंट अदर प्रोडक्शन की बात करें तो उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो एंड इट इज़ द कंसीवर दैट द व्हीट कुड बी ग्रोन इन फ्लोरिडा। अगर हम यूएसए की केस में बात करें तो डिफरेंट जो है स्टेट्स में डिफरेंट तरह की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो जहाँ पे पर यूनिट या जो भी उनके आप कह रहे हैं कि एरिया वाइज अगर पर यूनिट प्रोडक्शन जो है उसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उस वो पर्टिकुलर एरिया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है। But such production would be costly for similar geographical reasons. So, Nebraska produce products wheat in particular for which their resources are best suited। तो जिस कंट्री के या जिस स्टेट के या जिस रीजन के सोर्सेज जो है वो उस चीज़ को सूट करते हैं तो वही चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस करनी चाहिए। एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें वो हम लेटर ऑन देखेंगे भी वो दोनों होते क्या हैं। जब हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे होंगे उसमें भी हम कहीं ना कहीं इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन जो है वो इनकरेज करती है। इसी तरह मार्केट सिस्टम में जो है वो स्पेशलाइजेशन को इनकरेज किया जा रहा होता है और ना सिर्फ किसी एक्सपर्टीज में हम ह्यूमन स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, rather we are also talking about the geographical specialization। In last we have use of money। तो मैक्सिमम यूज ऑफ मनी जो है हमें यहाँ पे नजर आता है। rather obvious characteristic of an economic system is extensive use of money। Money performs several function, but first and foremost it is the medium of exchange. It makes trade easier। Specialization require exchange। Exchange can sometimes does occur through barter, swapping goods for goods, so wheat for oranges. But barter price serious problem because it requires coincidence of bond between the buyer and seller। Uh, अगर हम प्रीवियस सिस्टम की बात करें जैसे इन एंशियंट टाइम द बार्टर सिस्टम जो एक्सचेंजिंग गुड्स विद गुड्स, तो उस केस में क्या था कि वहाँ पे यूज़ ऑफ मनी की इतनी ज़रूरत जैसे नहीं होती थी उसके, लेकिन वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राइसिंग सेट करने में या लोगों को आप अपने चीज़ किसको सोर्ट करो एग्जैक्टली किस तरह के बायर्स को वो चीज़ चाहिए। कोइंसिडेंट बहुत रेयर होते थे कि आपको वही पर्सन मिले जिसको वो चीज़ चाहिए या आप
आपको जो चीज़ चाहिए आप उसी के साथ एक्सचेंज कर पाओ. So in our example, we assume that Nebraska had excess wheat to trade and wanted oranges, and we assume that Florida had excess oranges to trade and wanted wheat. So an exchange occurred. But if such a coincidence of want is missing, trade is not happen. Uh, okay. Suppose that Nebraska has no interest in Florida's oranges but want potatoes from Ohio, and suppose that okay, this कॉन्सेप्ट के यूज़ ऑफ मनी जो है हमें यहाँ पे मार्केट सिस्टम में देखने को मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा. आप मनी का यूज़ जो है वो देखते हैं rather than जो है a rather obvious characteristic of an economic system is extensive use of money. Money performs several functions, but first and foremost is the medium of exchange. It make trade easier. तो ये इसके थ्रू ट्रेड को easy जो है वो बना देती है. We have 20 minutes or so we can complete this particular topic. अगर हम यूज़ ऑफ मनी की बात करें तो वन ऑफ द ऑप्शन कि हम सिस्टम लाइक बार्टर सिस्टम के हम हर चीज़ के बदले एक्सचेंज करें. जो भी चीज़ आपके पास बीइंग इंडिविजुअल अगर एक्सेस में मौजूद है तो आप उसको कन्वर्ट करो एक्सचेंज करो किसी के साथ. तो इन दैट केस वो रिक्वायर्ड के कोइंसिडेंट ऑफ वांट हो कि दूसरे पर्सन को भी वही चीज़ चाहिए हो. तो यही आइडिया जो है अगर हम मैक्रो इकनॉमिक की बात करें तो ये डिफरेंट इकोनॉमीज की बेस पे भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स की बेस पे भी हो सकता है. The use of money as a medium of exchange permit trade to be accomplished despite a non-coincidence of want. तो यूज़ ऑफ मनी के थ्रू जो है वो ट्रेड पॉसिबल हो सकती है और ट्रेड के थ्रू जो है वो तमाम चीज़ों को डील किया जा सकता है. If we have three countries, three different states, and each of the state having excess amount of production, so one state can give the extra production to other state, and in this way the transaction take place and the excess amount of production can be used. But as we discuss कि मनी जो है मनी के थ्रू ये सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है. तो उस केस में क्या है जैसे नेब्रास्का there are different state of USA, Florida we have, Nebraska we have, and Idaho we have. In three, let's say we have state A, state B, and state C. And if we have state A, it produce wheat as a सरप्लस. यहाँ पे सरप्लस जो है ज़्यादा जो है वो वीट प्रोड्यूस हो रही है. इस वाली स्टेट में जो है वो पोटैटोज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. और थर्ड वाली स्टेट में फ्लोरिडा में जो है वो ऑरेंजेस जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब इन तीनों स्टेट्स की जो आइडल प्रोडक्शन है यू कैन से द सरप्लस प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो है वो वीट पोटैटोज एंड ऑरेंजेस की है. अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो वांट्स दिस पर्टिकुलर स्टेट वांट potatoes and this particular state want oranges and this particular state want wheat. If money system is exist मनी सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो तब जो है इन तीनों स्टेट्स के बीच जो है वो जो सरप्लस प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी वांट्स को कंप्लीट या फुलफिल कर सकते हो. जैसे
कि यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, इसको पोटैटोज चाहिए तो ये स्टेट से जो है पोटैटो जो है वो लेगा और उसके अगेंस्ट उसको मनी जो है वो दिया होगा। इसके पास अब मनी आ जाएगी। अब उस मनी को ये वाली स्टेट को ऑरेंजेस चाहिए तो ये मनी इसको दे देगा और इनसे जो है इस वाली स्टेट से जो है वो ऑरेंजेस जो है वो ले लेगा। इसी तरह अब इस स्टेट को जो है वो वीट चाहिए, ठीक है, और वीट जो है वो इस स्टेट के पास सरप्लस है तो इस स्टेट से जो है वो इसको मनी दे के वीट जो है वो यहाँ से ले लेगा। तो इन दिस वे द मनी जो है इस तमाम ट्रांजैक्शन को इस तमाम सिस्टम को एफिशिएंट बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। द नेब्रास्का ट्रेड द वीट दैट फ्लोरिडा वांट फॉर मनी फ्रॉम फ्लोरिडियंस। तो उस केस में क्या है, मनी के थ्रू जो है वो एक चीज़ जो आइडिया आप सेल आउट करके उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ आपको बाय करना है आप जो है डिफरेंट स्टेट से या डिफरेंट मार्केट से उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मनी हेल्प्स अ लॉट इन अ मार्केट सिस्टम। Then we have another point, it may be the last point, uh, एक्टिव बट लिमिटेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड होता है लेकिन समहाउ एक्टिव होता है क्योंकि तमाम पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवानी है। तमाम जो है पॉलिसीज को इंश्योर करना है वो गवर्नमेंट ने करना है। An active but limited government is the final characteristic of the market system in the modern advanced industrial economy. Or the market system promote a high degree of efficiency in the use of resources. It has certain inherent shortcoming called market failure. We will discover the subsequent chapter that government can increase. Somehow अगर मार्केट सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता है, मार्केट फेलियर जो है वो सामने आता है तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट चीज़ों का कंट्रोल कहीं ना करे तो गवर्नमेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है कि वो तमाम पॉलिसीज़ को इंश्योर जो है वो गवर्नमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे मार्केट सिस्टम में एक्टिव बट लिमिटेड गवर्नमेंट जो है हमें नजर, बहुत लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट का लेकिन एक्टिवली जो है वो रोल अपना प्ले कर रही होती है। So these are characteristic of market system, and we also compare that the utilization of these point at the characteristic of the economic system as command system as well. तो यहाँ पे हमने कमांड सिस्टम को पहले डिस्कस करा और फिर मार्केट सिस्टम को डिस्कस करने के बाद उसके डिफरेंट फीचर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस करी। Now we can compare both system and we also have understanding of mixed system। मिक्स सिस्टम में हमने कहा कि वो वही है जहाँ पे कुछ जो है वो चीज़ें मार्केट सिस्टम की हो, कुछ चीज़ें कमांड सिस्टम की हो और वो मोस्ट ऑफ द कंट्री फॉलोइंग द मिक्स सिस्टम जहाँ पे जो है फ्री इकोनॉमीज भी हमें देखने में मिलती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमने टेबल में जो भी चीज़ें डिस्कस करी थी जो हमें यहाँ पे टेबल 2.1 जो है हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सी कंट्रीज हैं जो मिक्स सिस्टम को फॉलो कर रही होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वाले अपने सेशन में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की थॉट क्या है, वो कैसे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म से डिफरेंट है और उसमें किन थॉट्स को किन फिलोसफीज को जो है फॉलो किया जा रहा होता है। Before going into the Islamic economic system, we will deal the 5 fundamental questions. The key feature of the market system help explain how market economies respond the 5 fundamental questions.
5 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनको जो है कैसे डील कर रही होती है मार्केट सिस्टम, कैसे डील करता है, हम उसको देखते हैं। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन को इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। देन वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 and 5 from our base book. What goods and services will be produced? How will goods and services be produced? Who will get the goods and services? बेसिकली वही 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसको हमने somehow जो है वो 4th and 5th में जो है एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट सिस्टम में रहते हुए इन तमाम क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो व्हाट विल बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? हाउ विल a market system decide on the best specific type and quantities of goods to be produced? The simple answer is this: the goods and services that can be produced at a continuing profit will be produced. ऐसी गुड्स ही प्रोड्यूस की जाएंगी जो है बेनिफिट दे रही हो। अब कौन मार्केट सिस्टम में कैसे डिटरमिन होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए? जो चीज़ प्रॉफिटेबल हो, जो चीज़ बेनिफिट दे रही हो, तो प्रोड्यूसर वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा। जब तक टोटल रेवेन्यू जो है आपके ज़्यादा होंगे टोटल कॉस्ट से, आप वो प्रोडक्शन कर रहे होगे। जैसे ही आपके टोटल रेवेन्यू कम हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो आप उस चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर रहे होगे। तो consumer sovereignty is the crucial to determine the types of quantity of goods produced. Consumers spend their income on the goods they are most willing and able to buy. Through these dollar vote, they register their want in the market. If the dollar vote for the certain product great enough to create a business will produce. अब कंज्यूमर जिन चीज़ को विलिंग है और कैपेसिटी टू बाय रखता है, उन चीज़ों की वो डिमांड करेगा, और जो चीज़ें डिमांड हो रही होंगी मार्केट में, वही चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी, वही चीज़ें मार्केट सिस्टम में प्रोड्यूस की जा रही होंगी। नंबर 1 इज़ व्हाट विल बी प्रोड्यूस। तो जो चीज़ें डिमांड हो रही होंगी, कस्टमर जो है वो, कंज्यूमर जो है वो गाइड कर रहा होगा मार्केट सिस्टम में। Another point we have, how will the goods and services be produced? Either labor, land, capital, कैसे फैक्टर प्रोडक्शंस के कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ की जाएगी, ह्यूमन कैपिटल कितना यूटिलाइज किया जाएगा, कैपिटल जो है फाइनेंशियल कैपिटल कैसे यूज़ किया जाएगा। तो इन तमाम की रेशोज, इन तमाम की जो है वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मार्केट सिस्टम में अकॉर्डिंगली हो रही होगी। What combination of source and technology will be produced, goods and services? How will the production be organized? The answer in combination will the minimize the cost. जो जहाँ पे जो है वो टोटल कॉस्ट कम से कम हो रही होगी, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे मार्केट सिस्टम में। अगर आपकी कॉस्ट आपको कम पड़ रही है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, तो आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। अगर आपको लेबर चीपर रेट में अवेलेबल है, तो आप जो है लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करना चाहोगे। तो मार्केट सिस्टम जो है वो उसमें टोटल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम हो, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाह रहे होते हैं। Let's say we have 3 different options: technique 1, technique 2, and technique 3. In technique 1, we have different units and different total cost available. अगर हम 4 unit of labor, 1 unit of land and capital and entrepreneurability use करें, तो that cost this much. The total cost in technique 1 is $15, and total cost in second technique is $13, and similarly total cost in technique third is $15. So now we will decide on the basis of the lowest cost. In this particular case, technique 2 costing $13, तो we will suggest कि technique 2 जो है हमें यूटिलाइज करनी चाहिए 2 लेबर 3
unit of land, one capital, and one entrepreneurial ability should be utilized to get the maximum benefit of resources. Then we have another question. Who will get the output? आउटपुट जो है अल्टीमेटली जो है वो कौन देगा? तो मार्केट enter the picture in two ways when determine the distribution of total output. Generally, any product will be distributed to the consumer on the basis of their ability and willingness to pay its existing market price. If the price of some product, say a small sailboat, is $3,000, then buyers who are willing and able to pay that price will save and sail away. अब किन लोगों को वो चीज़ सेव की जाएगी? ऑब्वियसली मार्केट सिस्टम में वो लोग जो उस चीज़ की कैपेसिटी रखते होंगे, एबिलिटी टू बाय रखते होंगे, उन लोगों को वो चीज़ जो है वो सेल आउट की जा रही होगी। कैपेसिटी जिन लोगों की होगी, जिन एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो लोग में जो है प्रोडक्शन जो है वो सेल आउट की जा रही होगी चीज़ें। तो अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को अगर कंपेयर करें विद कमांड सिस्टम, तो व्हाट विल बी प्रोड्यूस, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड करती हैं कि किस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहिए, किस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और हाउ टू प्रोड्यूस अगेन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज if the nature of government is democratic, then they must try कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लेबर को कैपिटलाइज करना चाहेगी। तो उस केस में जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किन कम्बिनेशंस के साथ जाना चाहिए। Although few of the combination may cost higher side, but the decision is made through the government bodies. Uh, Again, who will get the output? Again, government will decide different through different quotas and different ways in command system. And when we talk about the market system, obviously, whoever having the capacity to buy this particular product, they can easily buy. Or next we have, how will the system accommodate change? Market systems are dynamic. Consumer preferences, technology, supply of resources all change. This means particular allocation of resources that is now most efficient for a specific pattern of the consumer taste in technology alternative and amount of the way. चेंज जो है कंज्यूमर उसको गाइड करता है, कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे जो है प्रोड्यूसर को, सप्लायर को जो है अकॉर्डिंगली वो चेंज को ऑप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दैट they will be out of the market. Then we have another point we have, how will the system promote progress? Society desires economic growth, greater output, and higher standard of living, greater output per person. Per capita income, total GDP, ये तमाम चीज़ें maximum हो. How does the market system promote technological improvement and capital accumulation, both of which contribute to a higher standard of living society? अब इसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांस, efficiency, incentive, freedom. ओके ओके तो हमें यहाँ पे हाउ विल द सिस्टम प्रमोट प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। द मार्केट सिस्टम प्रोवाइड a strong incentive for technological advance and enable
better produce and process the supplement inferior one. An entrepreneur of the firm that introduces a new product will gain revenue and economic profit at the expense of rival. Firms that are highly profitable one year may find they are financially trouble just a few years later. Technological advances also include new and improved methods that reduce the production or the distribution cost by passing part of its cost reduction on the consumer through a lower product. A firm can increase sales, obtain the economic profit at expense of rival firm. Moreover, the market system promote the rapid spread of technological advance. तो मार्केट सिस्टम जो है वो प्रमोट करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ रैपिड स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस throughout an industry. Rival firm must follow the lead of the most innovative firm and also suffer immediate losses and eventual failure. In some cases, the result creative destruction. The creative destruction of new product and production method completely destroy the market position of the firm that are wedded to existing product and older ways of doing businesses. अ, अब अगर आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है कि आपने अकॉर्डिंगली अगर चेंज को ऑप नहीं किया, सिस्टम अपग्रेड नहीं किए, तो आप जो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो लॉस अकर कर सकता है, आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप एग्जांपल लें कि एडवेंट ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क largely demolished long play vinyl recorder iPod and digital technology are now supplementing CDs. अब प्रीवियसली जो CDs वगैरह को जो है वो थ्रू वर्किंग की जाती थी, यूज़ होती थी, उनको अब जो है उनके अल्टरनेट के तौर पे हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मिलती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है मार्केट सिस्टम में, और कैपिटल एक्यूमुलेशन को भी मार्केट सिस्टम इनकरेज करती है। मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस रिक्वायर एडिशनल कैपिटल गुड्स. The market system provides the sources necessary to produce additional capital goods through increased dollar vote for those goods. That is, market system acknowledge dollar voting for capital good as well as the consumer good. तो मार्केट सिस्टम जो है इन दोनों चीज़ों को मार्केट कैपिटल एक्यूमुलेशन को जो है मार्केट सिस्टम इनकरेज करता है, बट हु account the dollar vote for the capital good, and answer is entrepreneur and business owner. As a receiver of the profit income, they often use the part of income to purchase capital good, doing the even greater profit income in the future. Doing so yield even greater profit income in the future if the technological innovation that required the additional capital goes is successful. Also, by paying interest or selling ownership share, the entrepreneur and firm can attract some of the income of household as saving to increase their dollar vote for the production of more capital goods. कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन को मार्केट सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड में इन्वेस्ट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन किया जा सके। तो ये तमाम वो 5 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, इनको हमने देखा कि मार्केट सिस्टम में इन 5 क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। दिस पर्टिकुलर डिस्कशन about 5 fundamental questions in market system and the different characteristics of market system that we discuss in today's lecture. With that, we are going to end today's session. In coming session, we will include the Islamic economic system, and then we will compare the Islamic economic system with other economic system like market economy or command economy. And in a later phase, we will
uh, include the different other chapter regarding the GDP or whatever the chapter would be in our baseline book. So with that, I'm going to end today's session. Thank you for listening and keep watching all the lectures. Whenever you watch the lecture, do comment your name and registration number in comment section. And until the next lecture, Allah Hafiz.